दोस्तों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। आज श्याम प्रसाद जी से बातचीत किया हूँ, और बल्कि मैं तो कम बात किया हूँ। बहुत मशहूर और बहुत सीनियर फोटोग्राफर संदीप शंकर ने इनसे बातचीत किया है। और श्याम प्रसाद जी ने अपने एकेडमी शूट एंड शूट फोटोग्राफी एंड फिल्म एकेडमी को मुझे दिखाया, और मैं उसकी शूट भी किया, उसको कुछ वीडियो भी शूट किया हूँ। कैसे मॉडल को तैयार करते हैं, शूट करते हैं, कैसे स्टूडेंट को काबिल बनाते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे इस वीडियो को आगे देख करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं देखना। Hi, this is Shyam Prasad from Shoots and Shoot Photography and Film Academy. I am the director here as well as the faculty. Today we are going to shoot our female model shoot. In that we are going to have some garments and beautiful makeup. In that we had a good team. The makeup is going on inside the makeup room and the model is there as well as. And now we got a team here. Those are going to shoot our advanced batch students, and now we'll see their creativity as well as the different lighting and different background. So that energy is going to be here. So let's go with that, and I'll introduce you our model as well as the makeup team. Let's go inside the makeup room. So this is our makeup room, and here the model as well as the makeup team. And I'll introduce my model. Yes, she's. This is our green room, and in this we got our beautiful model. She is here, and she's going to show her talent in our shoots. So she's very professional and very experienced model. So let's introduce her. Hi, I'm Deepika Gupta. Today I'm here in this academy. I'm coming from Talent Mania. Girls are here. Those are doing their creative makeup on the model side. That model we have already seen, and then makeup is going on already. This is the gadgets. Their gadgets are here. We can say their tools and their beautiful kits for the makeup thing. And now we are going to start with the face shot. Please take a seat. Yes. Lights on. Perfect. Alright, so the first thing, now first our student is going to take the face shot. So who's going to be the first? Alright, so let's introduce our team. The first member of the team is going to be here. Yes, please introduce yourself. हेलो, मेरा नाम ओम है। मैं यहाँ शूट्स एंड शूट्स अकेडमी में एडवांस कोर्स ऑफ फोटोग्राफी में स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ फीमेल मॉडल शूट करने वाले हैं। मॉडल रेडी है। कुछ अभी हम पहले फेस शॉट्स निकालेंगे, उसके बाद हमारे जो भी टीममेट्स कुछ प्रॉप्स और आइडिया रहेंगे उसे भी देखेंगे। मेरा नाम अनु गुप्ता है। मैं प्रो का फोटोग्राफी स्टूडेंट हूँ, एंड आज हम फीमेल मॉडल शूट करने वाले हैं। मेरा नाम सागर कालरा है। मैं शूट्स एंड शूट्स अकेडमी का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम फीमेल मॉडल शूट करने वाले हैं, और अभी हम फेस शॉट्स लेंगे कुछ, उसके बाद दिखाते हैं क्या। Hi, I am Vikas Pal. I am a student of Shoots and Shoot, and I am doing a professional course from Shoots and Shoot, and he is a director. He is teaching us fashion light with multiple lights, 8 lights, and we are doing a female shoot with our beautiful model, and we will do our best with our props and beautiful ideas. Thank you. Very good, excellent team, all the best, good luck. So let's go. जी सर, आपको जानते तो हम बहुत पहले से हैं, लेकिन इस तरह की बात पहली बार कर रहे हैं जी। लेकिन थोड़ा ये बता दीजिए, आपने इसमें शुरू कैसे किया, फोटोग्राफी कैसे शुरू करी? मैं पॉटरी करता था, और पॉटरी मेरे ट्रेडिशनल फैमिली से आती है। फादर साहब से आती है। फादर साहब नेशनल अवार्ड विनर है पॉटरी में, शिव गुरु है, मदर नेशनल अवार्ड विनर है पॉटरी में, ब्रदर नेशनल अवार्ड विनर है। तो वहाँ से पॉटरी खून में चलती हुई आती है, और मन में ये था कि पॉटरी करेंगे और सब चीज़ें होंगी। तो उसके लिए हमने एक फोटोग्राफर साहब को अपॉइंट किया। ये फिल्म के ज़माने की बात है, उस समय कलर फोटोग्राफी नहीं, ब्लैक एंड वाइट ही वो शूट करते थे, उस समय की बात है। और मैं स्कूल लेवल कर रहा। तो हमारे जो पॉट्स बने, हमने उनको फोटोशूट वगैरह करने के लिए बोला। उन्होंने फोटोशूट किए, और वो पिक्चर से मैं कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें कुछ कहा कि भाई इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये ठीक नहीं आ रहा है, वैसा कर लें, डिटेलिंग नहीं आ रही है। तो वो उन्होंने मेरे को बच्चा समझ के और मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और बोले तुम्हें क्या पता फोटोग्राफी क्या होती है। अब मैं फोटोग्राफर हूँ प्रोफेशनली, तो मेरी बात को आप समझो। अब मैं बचपन था, छोटा था, लेकिन बात तो लग गई दिल को। अब लग गई तो फिर ये लग गई कि यार अब दिखाना है कि फोटोग्राफी होती क्या है। तो बस वहाँ से एक मन में लग गया कि फोटोग्राफी की तरफ जाना है, और फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐसी बढ़ती चली गई कि आज एक अलग ही रूप हो गया। फिर इसमें कोर्सेज किए, फिर डिटेल नॉलेज ली, एंड फिर गुरुजनों को साथ में रखा। बहुत सारे जगह गए जहाँ जहाँ ज्ञान मिला, तो गुरु लोग मिलते चले गए और यात्रा बढ़ती चली। मुझे लगता है कि आप
ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि आपके जहन में एक सेंसिटिविटी का मामला था, क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी, इसलिए आपने उसकी तस्वीरों में गलती पहचानी। लोगों को ऐसे इम्प्रूव करना ये एक ऑर्डिनरी आदमी के बस की चीज़ नहीं है। हाँ, मैं बात से सहमत हूँ बिल्कुल कि अगर आप किसी चीज को में कमी निकाल रहे हैं तो उसको फिर ठीक करके भी दिखाइए। हाँ, और अगर आप उसे ठीक करके नहीं दिखा पाते हैं तो फिर कमी निकालने का हक नहीं है उसमें। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, तो वैसा ही मैंने कहा कि अब मैं फिर करके दिखाऊंगा। फिर हमने उस पर बहुत ध्यान से डिटेल से स्टडी किया कि उस चीज़ को ठीक कैसे करा जाए टेक्निकली। मैं तो एक जैसे हम भी किसी को पिक्चर दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यार ये इसमें ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कैसे ठीक होगा, आप उसका टेक्निकल ज्ञान आपके पास होना चाहिए। दिमाग में ये कब आया किस तरह की एकेडमी बनाई जाए जहाँ बच्चों को सिखाया जाए फोटोग्राफी, प्रोफेशनल लेवल तक के कोर्सेज आप करवा रहे हैं? जी सर। तो इसका आपका टोटल एक्सपीरियंस और आपके स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर इसमें भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब मैं फोटोग्राफी सीख चुका था और मार्केट में काम करने लगा और इस लेवल तक सीखा कि हाँ अपने क्लाइंट्स को काम करके देने लगे, तो मुझे टीम की ज़रूरत पड़ी। और जब मैं टीम ढूंढता था तो मुझे क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड टीम नहीं मिल पाती थी। एक फिक्स टाइप ऑफ फोटोग्राफी करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाए, लाइटिंग चेंज हो जाए, कैमरा सेटिंग चेंज हो जाए और कुछ बदल जाए, फिर वापस उसको सेट करना, उस सिचुएशन के हिसाब से काम को करना, उतनी क्षमता मेरे को नहीं मिली। तो मुझे ख्याल आया कि यार जो आपने सीखा है, हर व्यक्ति तो कॉलेज जाकर के फाइन आर्ट्स कोर्स करके फोटोग्राफी पर 4 साल लगा करके डिप्लोमास करके नहीं आ पाएगा, इतना समय नहीं दे पाएगा। तो क्यों ना कोई आप ऐसा एक जरिया तैयार करें जिसमें लोग आकर के छोटे से लगा के बड़े कोर्सेज करें और वही लोग आपकी टीम का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो पहला विजन ये था कि मैं अपनी टीम एक शानदार तैयार कर लूं। अपने से तैयार किए हुए जो लोग होंगे, तो आप जब मुकाम पर उतरते हैं काम करने के लिए, किसी क्लाइंट के लिए जब काम करते हैं, तो आपके पास जो हैंड्स हैं वो निखरे हुए और आपके एजुकेटेड हैंड्स होते हैं, तो वो आपको एक प्रॉपर राइट वे में मदद कर सकते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं। तो ऐसे शुरू हुआ था, फिर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट्स का क्या है, कैसा है उनका काम? उनको मिल जाता है, वो कर पाते हैं, या आपके पास मदद के लिए आते हैं, एडवाइस के लिए आते हैं? किस तरह से चलता है? जी सर, तो स्टूडेंट्स में जो है मेरे पास बहुत सारे पहले नामी लोग भी कनेक्ट हुए। उसके अंदर में कुछ लोग एज ए हॉबी इसके अंदर आना चाहते हैं, जो डिफरेंट प्रोफेशन में भी दे आर, डॉक्टर प्रोफेशन है या इंजीनियरिंग है या कुछ और काम करते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफी को शौक के तौर से लेना चाहते हैं। जो वो चाहते थे कि यार कोई इनसे थोड़ा ज्ञान मिल जाए तो इसको हम तस्वीरों को अच्छा रूप दे पाए, अच्छे से शूट कर पाए, कैमरा है, लेंस है, लेकिन नॉलेज उस हिसाब से नहीं है, तो लोग सीखने के लिए आए। कुछ लोग इसमें कैरियर के हिसाब से जुड़ने लगे कि सर हमें तो इसमें कैरियर करना है और आप हमें इस तरह से सिखाएं कि हम इसमें 2 पैसे कमा सकें, अपना नाम कमा सकें इसके अंदर में और स्ट्रॉन्ग कर दें आप हमें। अभी तक हमारे जो एकेडमी के अंदर में 60 देशों के लोग हैं जो इनरोल हो चुके हैं और करीब 30,000 स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और वो सब अपने अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, एज ए हॉबी या एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। और इस फोटोग्राफी से उनका एक जरिया बन के आया, आमदनी का जरिया बना। मैं समझता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि आप कोई और कोर्स करते हो तो उसमें इतना क्विकली अर्निंग शुरू नहीं होती है। हमारे यहाँ पर अगर कोई एडमिशन लेता है तो विद इन 6 मंथ हम उनकी अर्निंग शुरू करा देते हैं, छोटे छोटे असाइनमेंट्स पे भेजना शुरू करते हैं, कुछ अर्निंग होती है, फिर धीरे 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 वो ग्रो करते हैं और जब तक वो 1 साल का कोर्स करते हैं तो एक अच्छे खासे एस्टैब्लिश फोटोग्राफर हो चुके होते हैं जिनका अपना ब्रांड, नाम और एक मुकाम बन चुका होता है। हमारे यहाँ जो फोटोग्राफी कोर्सेज हैं वो बेसिक से शुरू होकर के और सुपर प्रोफेशनल तक के कोर्सेज हैं। जो हमारा बेसिक कोर्स है वो 2 महीने का कोर्स होता है जिसके लिए 15,000 रुपीज़ फीस होती है और 1 वीक के अंदर 5 डेज इन ए वीक क्लासेस होती हैं जिसमें 2 आवर्स क्लास नॉर्मली रहती है। अगर प्रैक्टिकल्स हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा के भी चलते हैं। ऐसे ही हमारे पास 6 मंथ का एडवांस लेवल कोर्स है जो नेक्स्ट लेवल है आफ्टर बेसिक, और एक प्रोफेशनल लेवल कोर्स है जो कि 1 ईयर कोर्स है जिसके अंदर में जो कैरियर ओरिएंटेड कोर्स है जिसके अंदर अगर आप मार्केट में कहीं जॉब करना चाहते हैं, अपना स्टूडियो शुरू करना चाहते हैं तो उस कोर्स में आ सकते हैं जिसकी फीस है 1,60,000 जिसे स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, पर मंथ के हिसाब से पे कर सकते हैं। और उसके आवर्स भी 2 आवर्स रेगुलरली क्लासेस होती हैं जो कि 5 डेज इन ए वीक रहता है। और उसके साथ साथ जब हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे आज एक मॉडल शूट गोइंग ऑन है तो उसमें सुबह से शाम तक का पूरा शेड्यूल होता है। तो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स है, वी कैन से कि 20% जो है थ्योरी है और 80% प्रैक्टिकल है।
तो हम अपने स्टूडेंट्स को ऑन लोकेशन भी लेके जाते हैं, जिसके अंदर वेडिंग फोटोग्राफी की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। उसके बाद फैशन से रिलेटेड भी क्लासेस हैं हमारे पास में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, फूड फोटोग्राफी है। तो 1 ईयर कोर्स में ये सारे पार्ट हम लोग कवर करते हैं। इतना छोटा मेरा सवाल ये है कि अगर इक्विपमेंट की ट्रेनिंग की जाए तो मेरे हिसाब से वो दूसरी चीज़ है और फोटोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? इक्विपमेंट की समझ, लाइट को सेटिंग, कैमरे की सेटिंग, कैमरे लेंस के बारे में, और उसके जो रिएक्ट करता है इमेज के ऊपर, वो सब आप टेक्निकली सिखा देंगे। पिक्चर जो सर्च करना है, जो पिक्चर तलाशनी है, खासतौर से जो कमर्शियल शूट नहीं है, कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, उसको किस तरह क्या होगा, उसके लिए क्या करना होता है और कैसे बताते हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं फोटोग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है टेक्निकल और दूसरा एस्थेटिकल। एक सौंदर्य की बात करता है और एक तकनीक की बात करता है। तकनीक के अंदर में तो हम कहें क्योंकि कैमरा में क्या सेटिंग्स हैं, अपर्चर क्या लगेगा, एक्सपोजर क्या होगा, ये कॉमन सा है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति सब सेम ही चीजें सिखाएगा। अपर्चर क्या है, शटर स्पीड क्या है, कैमरा में कौन सी सेटिंग करें, कौन सी ना करें। कैमरा के मैनुअल में भी बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, तो ये तो हम सिखाते ही सिखाते हैं। और उसके साथ एक और चीज सिखाते हैं जो है सौंदर्य शास्त्र, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं, एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी। एक राइट सब्जेक्ट को चूज करना कि मुझे क्या शूट करना है। मैं कैमरा लेके चल चुका हूँ सड़क पर, मुझे क्या शूट करना है, कौन सा मेरा फ्रेम है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, इसका ज्ञान, ये एक दूसरी बात हो जाती है। तो ये पूरे दौर जब चलता है हमारा, तो हम पिक्चर्स को रिव्यू करते हैं, अपने ग्रेट फोटोग्राफर्स के काम को दिखाते हैं, उन तस्वीरों के अंदर में बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बोलती हैं। जैसे कहते हैं कि तेरी तस्वीर बड़ी निराली है, लगता है तू बात करने वाली है। कुछ ऐसी बात जब तस्वीर में आ जाए, अब ऐसी फोटोग्राफ जिसको देख के आप हंस पड़े, ऐसी फोटोग्राफ जिसको देख के आप उदास हो जाएं, ऐसी फोटोग्राफ जिसको देख करके आप जो है अलग से ही एक मूड में चले जाते हैं, तो ये सौंदर्य शास्त्र है फोटोग्राफी का। उसमें टेक्निकल चीजें कहीं दिखाई नहीं देती हैं, बिहाइंड द कैमरा हो सकती है, कैमरा के इनसाइड हो सकती है, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं होती। तो एक विजन, हाउ टू विजुअलाइज योर थिंग्स, हाउ टू विजुअलाइज, सोच जो है एक फोटोग्राफर के अंदर कैसे डेवलप होगी, सही फ्रेम, सही सब्जेक्ट को चूज करने की, और उसे किस एंगल से, किस लाइट में, कितने तरीके से उसको शूट करना है, कैमरा कहाँ रखना है, पोजीशन क्या रखनी है, जिसके अंदर कॉम्पोजिशन भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो ये सारे पार्ट हमारे एक पिक्चर को सुंदर बनाने में सहयोग करते हैं। अच्छा, उसमें जो इमोशंस होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको किस तरह से बताया जाता है? जो एक फोटो है, जैसे मैंने अभी कहा कि एक फोटो को देख करके अगर आप उदास हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं या आपका मन में चेंजेस आ जाते हैं, तो ये सारा कनेक्ट होता है कि जब हम किसी फ्रेम को, सब्जेक्ट को देखते हैं, तो जब हमने देखा तो हम उसमें कनेक्ट हो गए, यार बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको शूट करना चाहिए। तो हमें अपना कैमरा लगाएं, लेकिन तब तक वो क्षण शायद आगे निकल चुका होता है या वहां स्टे नहीं रहता है, तो फिर से वापस आने तक इंतजार करिए। मेरा ये मानना है कि जब देखा था तब मैंने फोटो नहीं ली, और जब मैंने फोटो ली जो देखा था उससे अलग हो गया। तो इन दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि देखने और क्लिक करने में अंतर आ जाता है। तो ये दोनों एक साथ हो तो ही चीज बेहतर होगी। दोस्तों, ये आपने देखा, ये वीडियो कुछ विशेष वीडियो था। इस तरह की वीडियो मैं आगे भी दिखलाने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको देखने के लिए धन्यवाद करूं, इससे ज्यादा धन्यवाद मैं करूंगा श्याम प्रसाद जी का, जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला। बहुत बिजी रहते हैं, आप वीडियो देखे होंगे तो पता चला होगा कि अत्यंत व्यस्त रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।